Hello everyone, welcome to my channel. Let's crack with Mahi. As I have said in my previous video that I'm starting the series of GPSTR syllabus. So first chapter of this syllabus is I'm taking chemistry, that is structure of atom. So let's begin. Imagine you're holding your phone right now, but what if I tell you this phone is mostly empty space? Yes, the atoms inside it and even inside you are not solid like we think. So, what's really inside an atom? Is it just a tiny ball or a whole universe inside it? Today, in Let's Crack with Mahi, we are going to zoom into a world so small that even a million atoms can fit in a tiny dot. So, we'll uncover what atoms really look like, who discovered them, and the shocking truth about electrons and nucleus. Trust me, after this class, you will never look at the matter the same way again. So get ready. Let's break the atom. No, not physically, but conceptually. Let's break structure of atom and let's crack GPSTR together. This chapter is very important for all the exams like Karnataka, DT, CT, GPSTR and HSTR also because it is the basic of chemistry. From this only we can know that what atom will do, what is having the properties of atom. Okay. So as we are having atom are the basic building blocks of matter. So matter consists of different types. Like we are taking this matter. For example, this is a solid matter. In this matter, what it is made up of? Anything you take in your daily life, it is made up of something only. For example, we are taking some toothbrush. It is made up of plastic. Okay, bristles of plastic only. So like that, anything you are taking, it is made up of atoms. So this is a matter which is made up of a smallest particles. So this it is made up of smallest particles. Those are called as matter. You can see here. So these are the atoms which is arranged and it is made up of this full combine and make a matter. Basically, atoms are the building blocks, and atoms came from a Greek word that is atomia, which is meaning indivisible. So all this have said by a scientist. Which see, you have to remember the scientist what they have discovered from starting to the end. First starting, the first scientist he came. This is John Dalton. What John Dalton had discovered, he has discovered that atom is indivisible. एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते सो बट फर्दर आगे आगे जाते क्या जैसा ही हिज एक्सपेरिमेंट वाज limitations came and his what he said that atom is indivisible it was wrong. क्या पढ़ाया क्या बताया है वो that also we should know. Okay, so law of conservation of mass, he has in his theory he has said that first thing he said that atoms are indivisible. Okay, next, second, what he said law of conservation of mass, that is atoms cannot be created or destroyed in a chemical reaction. आप देख सकते हो. Okay, I am taking a atom here, hydrogen. Hydrogen atom I am taking here. Okay, and we are combining it with oxygen. What it is giving? It is giving us water. You can see here I have taken here hydrogen and in product also I am getting the same amount of hydrogen. Atoms cannot be created. It is present. It is not created and cannot be destroyed. In a chemical reaction हम create भी नहीं कर रहे हैं destroy भी नहीं कर रहे जो ले रहे हैं बस compound बना रहे हैं change कर रहे हैं. Okay, so he said this. The next he said about law of constant composition. Law of constant composition, what it is? A chemical compound always contains the same elements combined in a fixed proportion by mass irrespective of its source or method of preparation. Here I am taking, as I have taken water there, here also I am taking water. आप water को कहाँ पर भी ले लो. As if you are taking liquid water, it is H2O only. अगर आप ice ले रहे हो तो it is H2O only. आप अगर समुंदर का पानी भी ले रहे हो तो it is H2O only. फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट ओनली आई एम टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर भी जाओ इसका फॉर्मूला क्या होगा?
CO2 ही होगा। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले रहे हो तो भी CO2 होगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इन लैब दैट इज़ ऑल्सो CO2। कार्बन का 12 ग्राम ही आएगा, 12 एटॉमिक मास 12 ही आएगा, ऑक्सीजन का 16 ही आएगा। Either you take in carbon dioxide or you can take in methane. Okay. The next is law of multiple proportion. When two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. For example, here we can see I'm taking here water and I'm taking here hydrogen peroxide. Okay. You can see here when two elements, these are the two elements, to form more than one compound. Same elements are forming more than one compound. Okay. The masses of one element that combine with the fixed mass of other element. Mass of one element. This is the one element which is combining the fixed mass of other element. हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या है, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट हो गया। ये जो और एक एलिमेंट है इस ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है फिक्स्ड मास ऑफ other elements say are in the ratio of small whole numbers. You can see here one oxygen is there and here two oxygens are there. So one oxygen means it is having 16 atomic mass, 16 gram of oxygen, and here we are having 32. 16 twos are 32. It is in the small whole numbers. Small whole numbers means it is 16 ones are, 16 twos are. It is becoming 1 is to 2. This is the small whole numbers. So here we can understand that Dalton's theory is have given 4 points. That first is atom is indivisible, then law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportion, and he also said that one element is having fixed mass. So एक एलिमेंट का मास फिक्स नहीं होता, आगे आगे हम देख सकते हैं कि उसके लिमिटेशंस क्या क्या है. ओके, सो नेक्स्ट Dalton's atomic theory's limitations we'll see. So what are the limitations of his theory? As Dalton's assumption that atoms are indivisible. Atom को हम divide नहीं कर सकते. What he said, atoms are indivisible. हम इनको divide नहीं कर सकते. But this theory has proved wrong. हम atom को divide कर सकते हैं. How we can know that atoms are indivisible? I'll tell you in the next slide. Atoms of same element have different masses. Yes, atoms of same element have different masses. क्योंकि ये या हम यहाँ पर आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आएगा. ओके, सो एक एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मासेस हो सकते हैं. सो एटम्स कैन बी डिवाइडेड. एटम्स किस किस में डिवाइड हो सकते हैं? एटम्स आर डिवाइडेड इनटू three different types which we'll see. Atoms are divided into electrons. Where it is divided into electrons, protons and neutrons. So electrons, protons and neutrons में ये क्या होंगे, डिवाइड होंगे. माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा, प्लस चार्ज एंड दैट इज न्यूट्रल. सो ये सब है बोलकर समझ कैसे आया? हाउ दे हैव नोन दैट इन द एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो डेली बेसिक हम जो हमारे घर में खेलते रहते हैं कि कोम कर कर यू विल अट्रैक्ट द पेपर्स, स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स. क्या करते हैं, जो ऐसे पेपर्स के पास लेकर के तो क्या होगा, वो पेपर से अट्रैक्ट होंगे. एंड वी हैव ऑल्सो प्लेड दैट ऑन सिटिंग चेयर. चेयर को जब हम टॉवल से बैक साइड मारेंगे, सामने आकर अगर आप फिंगर को टच करोगे जो चेयर पर बैठे हैं, यू विल फील द लाइक अ स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ये सब कैसे होगा? ये सब चीज़ें देखकर वी अंडरस्टूड दैट एटम क्या है, इनडिविजिबल नहीं है, एटम कैन बी डिवाइडेड. तो इसको हम क्या कहते हैं? सी अ गर्ल इज रबिंग अ ग्लास विथ सेल. वो रब कर कर जो वहाँ पर जो पेपर्स जो पड़ा हुआ है उसको ये कर रही है, इट इज़ अट्रैक्टिंग. सो अट्रैक्ट होने के लिए कुछ वजह चाहिए. सो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ओके, one thing is there, that is static electricity. Okay, static electricity के concept से ये सब आया है. So from this we can understand that atoms are divisible. So discovery of sub,
ये जो सारे एटम के पार्टिकल्स है, जिस जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज ऑल आर called as subatomic particles. The first time indicated by the help of static electricity, as I have told. कैसे पता चला ये? क्योंकि इसमें क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पता चला है। तो ये यहाँ पर स्मॉल स्मॉल पेपर्स, दीज आर द स्मॉल स्मॉल पेपर्स, अगर आप कोम कर कर इसको सामने रखोगे तो ये क्या होगी, इससे अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट हो रहा है मतलब इसके अंदर कुछ तो है जो अट्रैक्ट इसको कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस का। हमको पता है कि कौन से भी लाइक चीज़ें होते हैं, सेम चीज़ें होते हैं, दैट विल रिपल। सो लाइक चार्जेस क्या हो गए यहाँ पर, इट इज रिपलिंग। यू कैन सी हियर एक प्लस चार्ज दोनों लाइक चार्जेस हो गए, दे आर रिपलिंग ईच अदर। द नेक्स्ट, अनलाइक में क्या होगा, अनलाइक में होगा कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। आप देख सकते हो यहाँ पर the charges, which is one is positive charge and one is negative charge, both are, what happens, they are attracting with each other. So next, like charges और unlike charges attract होते हैं। ये concept की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, we are developing what is present in an atom. So discovery of electrons were discovered by the scientist J.J. Thomson. From which experiment he has discovered the electrons? From cathode ray tube experiment. Cathode ray tube experiment का help से he has discovered the electron. What is the setup of cathode ray tube experiment? How he has discovered? Let's see. So cathode ray discharge tube experiment में क्या क्या होगा यहाँ पर? Here we are having कैथोड। एज नेम में ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, कैथोड को हम यूज कर रहे हैं। तो हियर दिस पार्ट इज देयर, दिस इज योर कैथोड, और यहाँ पर जो है दिस पार्ट इज योर एनोड। सो कैथोड और एनोड। द नेक्स्ट, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप होगा, जिस दिस प्लस इज माइनस इज योर वोल्टेज। देन यहाँ पर और बैटरी से हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। The next, what is happening, how the setup is there? You can see here cathode जो हमने लिया है, ये cathode में क्या हो रहा है यहाँ पर, this cathode is having some holes. holes में से क्या होगा, आप जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये होल्स में से क्या होंगे, रेज पास होंगे। These rays are passing because cathode को हमने क्या लिया है, इसको बोलते हैं हम perforated cathode. सो परफोरेटेड कैथोड इन द सेंस कैथोड में छोटे स्मॉल होल्स है जिससे रेस पास हो रहे हैं। सो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर कर करके लास्ट में हमें पता चला कि वो इसके कैथोड रे ट्यूब के अंदर वी हैव टू टेक लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, और इसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए वी आर हैविंग अ वैक्यूम पंप। सो नेक्स्ट, इसके अंदर जो स्टार्ट करी, उसके बाद जब हमें उनको पता नहीं था कि शुड टेक लो प्रेशर हाई वोल्टेज, ट्रायल एंड एरर करने के बाद ही पता चला कि इसके अंदर प्रेशर क्या करना है, लो रखना है, और वोल्टेज क्या करना है, हाई रखना है। जैसे यहाँ पर कैथोड क्या हो रहा है, परफोरेटेड कैथोड से रेज जा रहे हैं, ये जाकर किस पर हिट कर रहे हैं, इट इज हिटिंग ऑन एनोड। तो एनोड पर हिट करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रेज कैथोड से निकल रहे हैं, यहाँ पर दे हैव टेकन अ स्क्रीन दैट इज कॉल्ड एज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा। कैथोड रे ट्यूब में जो हमने स्क्रीन लिया है दैट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इसके ऊपर क्या हो रहा है, द रेज आर हिट कमिंग एंड हिटिंग। जब ये हिट कर रहे हैं, अ ग्रीन कलर स्पार्क इज कमिंग। ओके, सो जिंक स्क्रीन हैज प्लेस्ड बिहाइंड द एनोड, और ये स्पार्क यहाँ पर आ रहा है। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही है, रेस तो पास हो रहे हैं, पता कैसे चल रहा है? हियर इसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यू कैन सी हियर, एक ये जो रे जा रहा है, इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी मैंने बताया कि लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस व्हाट, अट्रैक्ट। तो ये माइनस रहा तो यहाँ से रिपल ही होगा ना, यहाँ से रिपल होकर कहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है, प्लस के साइड अट्रैक्ट हो रहा है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस द रेज, कैथोड से जो रेज आ रहे हैं, दोज आर नेगेटिवली चार्ज। देन कैथोड रेज आर इनविजिबल, द रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये सारे तो रेज इनविजिबल होंगे, हम देख तो नहीं सकते, बट अट्रैक्शन की तरफ से हम क्या कर रहे हैं, वी नो दैट इट इज व्हाट हैपनिंग, attracting. In presence of electric and magnetic field, it deflected towards positive plate, you can see.
सो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, नेचर ऑफ गैस, क्योंकि मटेरियल जो भी हो, सब मटेरियल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. द नेक्स्ट यू कैन सी द सेटअप, एंड ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है करके पता चल गया. उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज भी तो है. व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता है. ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. इसको रिलेटिव चार्ज बोलते हैं. देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इज देयर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज E equals to minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू है, ये आपको याद रखना चाहिए. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, मास भी होगा, कुछ उसका वजन भी होगा. तो इलेक्ट्रॉन एंड मास रेशियो पता चलने के बाद ये दोनों यूज कर कर दे हैव डिस्कवर्ड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1094 into 10 power minus 31 kg. ओके, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का मास एंड इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा. फाइन. नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हो गया, सेम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो जो हम सेटअप किए थे सेम यू हैव टू टेक, बट क्या होगा, रेस का डायरेक्शन अपोजिट हो गया. जो रेस कैथोड से जा रहे थे वो रेस कहाँ से जा रहे हैं, द रेस आर गोइंग फ्रॉम एनोड. एनोड में भी सेम, दिस इज परफोरेटेड एनोड यू हैव टू टेक. सो परफोरेटेड एनोड से रेज जो जा रहे हैं दे विल गो एंड हिट ऑन कैथोड. कैथोड पर हिट करने के बाद ये जो रेज है जाकर यहाँ पर भी एक स्क्रीन होगा, ये स्क्रीन पर क्या आएगा, रेड ग्लो आएगा. सो हियर ऑल्सो लो प्रेशर दे हैव टेकन, हाई वोल्टेज दे हैव टेकन. यहाँ पर वैक्यूम पंप है प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए. सो एनोड से जो रेज जाकर कैथोड पर हिट कर रहे हैं दोज आर गोइंग एंड हिटिंग ऑन द स्क्रीन, दैट इज गिविंग अ रेड ग्लो. सो अगर ये हिट कर रहा है मतलब दैट इज अट्रैक्टिंग. सेम चार्ज तो नहीं होगा ना, कैथोड कैथोड अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा तो हिट नहीं करते थे, रिपेल करते थे. तो जाकर हिट कर कर अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो एनोड इज ऑल्सो हैविंग अपोजिट चार्ज फ्रॉम कैथोड. तो यहाँ पर ये होने के बाद क्या हुआ, व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड सिमिलरली, they have said that atom is containing positive charge that is called as proton. proton तो है ही इसमें. then next, सेम स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, हिट होगा तो रेड ग्लो हो रहा है. व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, ग्लो वाज सीन इंडिकेट्स चार्ज पार्टिकल. यहाँ पर भी चार्ज टू मास रेशियो डिस्कवर की, दैट डिपेंड्स अपॉन द गैस विच इज यूज्ड इनसाइड द कैथोड रे एनोड रे ट्यूब. एंड वन मोर थिंग, जो हम कैथोड रे ट्यूब में रेज यूज कर रहे थे उसको हम बोल रहे हैं कैथोड रेज. जो एनोड ट्यूब में यूज कर रहे हैं हम उसको बोल रहे हैं हम केनाल रेज. ओके, वी आर सेइंग इट एज केनाल रेज. ओके, नेक्स्ट, तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर क्या हुआ था, जो रेस थे जाकर स्ट्रेट जाकर प्लस की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर स्ट्रेट जाकर कहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, माइनस की तरफ. तो हियर द मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज. नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयोन इज हाइड्रोजन आयोन, इसको हम जो प्रोटॉन भी कहते हैं. सो यहाँ पर भी क्या है आपका चार्ज टू मास रेशियो, और इसका भी जैसे इलेक्ट्रॉन इज हैविंग माइनस चार्ज रिलेटिव चार्ज, यहाँ पर प्रोटॉन के पास क्या होगा, सेम रिलेटिव चार्ज. क्या होगा प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज इज, हमको जैसे पता है प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो रिलेटिव चार्ज इसका पॉजिटिव हो गया. सो व्हाट इज द चार्ज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, ओके, वैल्यू ऑफ प्रोटॉन इज प्लस 1.6 होगा यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम. तो यहाँ पर इसका प्लस हो गया. अब यहाँ पर मास में थोड़ा डिफरेंस आएगा. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या है, यहाँ पर चेंज है. ओके, कितना चेंज है, आई विल शो यू आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. क्योंकि उसकी वजह से ही हमें पता चलता है कि न्यूट्रॉन में कुछ है. जैसे एटम, मैंने बताया कि एटम है, एटम में प्लस चार्ज हो गया माइनस चार्ज हो गया, दोनों का मास है. दोनों का मास रहने की बाद क्या होगा यहाँ पर, जब हम एटम को वे करेंगे तो इसका एटम का मास इन दोनों के ऐड करने पर क्या होगा, सिमिलर आना चाहिए, तो सिमिलर नहीं आया. सिमिलर नहीं आने की वजह से साइंटिस्ट को क्या हो गया कि and something is there in an atom with, that's why it is not showing the same atomic mass, same mass of an atom. So then led to the discovery of neutron, as electrons are discovered by J.J. Thomson and protons are discovered by E. Goldstein. And
न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जेम्स चैडविक, ये साइंटिस्ट के नेम याद रखने होंगे। सो न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ? अब हमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन था जो डिफ्लेक्ट हो रहा था पॉजिटिव की तरफ, एंड प्रोटॉन था जो डिफ्लेक्ट हो रहा था नेगेटिव की तरफ। बट न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होगा तो ये डिफ्लेक्ट कैसे होगा? लेट्स सी what scientists have done. Scientists have taken a source that is radioactive source which is polonium में से अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर याद रखिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, अल्फा पार्टिकल्स जो भी रहते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पर पोलोनियम सोर्स से दे आर पासिंग ऑन व्हाट, पासिंग ऑन अ बेरिलियम टारगेट। बेरिलियम से बना हुआ एक ब्लॉक है, उसके ऊपर क्या टारगेट कर रहे हैं, बेरिलियम पर जब हिट होगा इसके अंदर से क्या होंगे, रेस न्यूट्रल रेडिएशंस क्या होंगे, पास होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल्स में क्या होंगे, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो बेरिलियम पर जैसे ही ये हिट करेगा इसके अंदर के न्यूट्रॉन्स जो है ये स्पार्क आउट होंगे। अब जब ये न्यूट्रॉन्स जाकर यहाँ पर हिट करेंगे पैराफिन वैक्स ब्लॉक पर, सो यहाँ से क्या होंगे, प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पैराफिन वैक्स के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है। सो पैराफिन वैक्स के अंदर प्रोटॉन्स है, जैसे ही न्यूट्रॉन्स हिट करेंगे ये क्या होगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। सो हियर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे ही न्यूट्रॉन हिट कर रहा है ब्लॉक पर, इसके प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हमें पता चला कि नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स इज हैविंग नो चार्ज। एंड वन मोर थिंग, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है। ओके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास इज नॉट सिमिलर। ओके ये 1/8336 टाइम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोटॉन। बट यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल। ओके सो इट इज डिटेक्टेड बाय इजेक्टेड प्रोटॉन्स। कैसे पता चला कि प्रोटॉन्स इजेक्ट होने की वजह से इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है करके, वी हैव गॉट टू नो। ओके so here led to the discovery of electron, proton and neutron. So next, so here atoms are divisible, understood, because electron, proton and neutron present है। subatomic particles क्या क्या है, electron, proton and neutron है। so discovery of electron में हमें क्या क्या पता चला, it is having mass 9.109382 into 10 power minus 31 kg इसका मास होगा। चार्ज कितना होगा, -1.602 into 10 power minus 19 कूलम। प्रोटॉन का मास यू कैन सी ये 9.1 है, ये 1.6 है, चेंज है, बट चार्ज क्या होगा, सेम होगा, -1.6 या +1.6। एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में मास कितना है, 1.67, ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन, एंड चार्ज विल बी इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके मास ऑफ प्रोटॉन इज, आई हैव टोल्ड यू मास ऑफ प्रोटॉन इन केजी। ओके मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU इज 1.00373 AMU. This is the mass of proton. Okay, this will be the right answer. Which of the following statements about the electron is incorrect? See, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, what will be the trick you have to use? यहाँ पर क्वेश्चन में देखना चाहिए कि what it is telling correct और incorrect, true पूछ रहा है या false पूछ रहा है। एंड एलिमिनेशन मेथड यू शुड यूज कभी भी, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से हमको आंसर जल्दी मिलता है। इट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, करेक्ट है, ये नहीं होगा इसका आंसर। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन, हाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है। हम अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम नहीं है और न्यूट्रॉन का भी सेम नहीं है। मास किसका किसका सेम है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सिमिलर। So you can see your option B will be the correct. Let's see next option also. It is a basic constituent of all atom, right? Atom का basic constituent है ही ये, कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों भी है। It is constituent of cathode rays, हाँ हमको cathode rays से ही पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है बल्कि। Who discovered the electron? Goldstein? No. J.J. Thomson. J.J. Thomson discovered the electron. Goldstein ने क्या डिस्कवर किया है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया है प्रोटॉन, and James Chadwick has discovered neutron. एंड ये गोल्डस्टीन का नाम ही ई गोल्डस्टीन है। ओके डोंट कंफ्यूज,
ई गोल्डस्टीन इज ऑल सेम सिमिलर, दो अलग साइंटिस्ट नहीं है, ई गोल्डस्टीन है गोल्डस्टीन का नाम. So neutrons are neutral particles present in the nucleus of an atom. न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में क्या होगा, न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स. सो इज इट करेक्ट और नॉट? यस, ट्रू. कहाँ गया? So neutrons are the neutral particles. This will be the right answer. The subatomic particles present in an atom are, जैसे हमने 3 एटम्स का डिस्कवरी देखा, तो तीनों क्या है, सबएटॉमिक पार्टिकल्स है. किसके है? एटम के. प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. फर्स्ट ऑप्शन यू कैन सी, हमको डायरेक्टली देखते ही पता चल रहा है कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स. ओके, प्रोटॉन्स, न्यूट्रिनोज एंड इलेक्ट्रॉन्स नो, म्यूऑन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नो, पॉजिट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोज नो. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द correct answer. So thank you. This is about the discovery of atoms in subatomic particles in an atom, that is electron, proton and neutron. These 3 discoveries, after that I'll tell you in my next class about the theories which led to the discovery of structure of atom. So until then, like, share and subscribe my channel, because if you like and subscribe only, then I get motivation to make many videos like such. I think structure of atom I'll complete in next 2 to 3 classes. वीडियो लॉन्ग होता है करके आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द theories of models of this chapter. Then next we'll see in next class I'm telling you about the models, Bohr atomic model, Thomson model, Plum-Pudding model. Okay, so until then, like, share and subscribe, and watch the full video.